Good evening, students. Now, here I am going to present the topic on force and laws of motion from class 9. Now, before proceeding in the chapter, let us say what is force. Now, in the lower classes, we have studied about force. Force is a push or a pull which is given to an object. Now, for example, in here I am writing with my chalk, say I am writing this word force. So with this chalk and with my fingers I am applying a force, because of which we are able to write this word force on the blackboard. Now there are various types of forces which we can see which exists in and around us. So basically in this chapter we will discuss about two types of forces. One is called the balanced force, another is called the unbalanced force. So what is balanced force? Now when I consider balanced, that means everything is balanced when I am applying this force, balanced force. Suppose if I take a particular box and tie a rope from both sides. Say from this end a particular boy is pulling this particular box, and from this side another boy is pulling this particular box. Now here he is applying a force of say 10 Newton. I am coming to Newton. Newton is the amount of force. I am coming to that later on. And here also this boy is applying a force of 10 Newton. Now as you can see, from both the sides same amount of force is applied, and this particular box in this situation will neither move in this side or it will move in this side. So what will happen here? This particular box will remain in its fixed position, that is in its original position. Now this particular mechanism is called the balanced force. Now if we come to unbalanced force, same example we are taking. Say now this particular boy is exerting 15 Newton of force, and here this boy is exerting 10 Newton of force. तो दोनों साइड से अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो हियर हम लोग बोल सकते हैं दिस पार्टिकुलर फोर्स विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है? इस साइड से हम लोग 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस साइड से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो इन दिस सिनेरियो द बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस साइड से हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस साइड से 10 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज फ्रॉम बोथ एंड्स unequal amount of forces are applied. एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है. So here lies the difference between balanced force and unbalanced force. Now more examples we can say for unbalanced force, जैसे कि हम लोग जब पेडलिंग करते हैं साइकिल को चलाने के लिए, as soon as हम लोग अपना पेडलिंग बंद कर देते हैं, साइकिल का जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस देयर? ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. आप लोग क्लास 8 में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़े हो. फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने के वजह से वो साइकिल धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाता है. दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हियर बिकम्स ग्रेटर, बिकॉज हम लोगों ने पेडलिंग बंद कर दिया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से वो पार्टिकुलर जो साइकिल है वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता जाता है.
So frictional force here can be regarded as the unbalanced force. Now force जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर वो अगर मोशन पे होता है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या अगर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में चला जाएगा। उसी को, उस फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए सर आइजक न्यूटन ने, उन्होंने he gave some laws on motion which were called Newton's laws of motion. तो under this Newton's law of motion we have number 1 first law of motion. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं डिस्क्राइब करता हूं। सपोज एक बॉल है आपके सामने, मिट्टी पे रखा हुआ है, वो रेस्ट में है, मतलब उसका कोई हिलना डुलना कुछ भी नहीं है, वो रेस्ट में है। जब आप उसको किक मारोगे वो क्या होगा, बॉल एकदम सीधा मूव करेगा। जिस डायरेक्शन पे मारोगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में मारोगे, रेस्ट से जब बॉल को आप किक मारोगे वो बॉल मूव करेगा। उसका ऑपोजिट, अगर एक बॉल मूव कर रहा है, उसके बीच में आपने बॉल जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है अचानक से पैर रख दिया, तो पैर पे लगते ही वो बॉल रुक जाएगा। तो इससे व्हाट वी कैन डिराइव दैट एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे कंटिन्यूअसली रहेगा, या फिर वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड एज a body continues in its state of rest or of motion in a straight line unless and until it is experiencing an unbalanced force. So here this describes the first law of motion. Now after first law of motion हम लोग अब आएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमको पहले आप लोग मोशन चैप्टर में आप लोगों ने मास के बारे में पढ़ा था। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी जो कि स्मॉल m से डिनोट किया गया था। वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था जो कि स्मॉल v से डिनोट किया गया था। अगर हम लोग मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो करने के बाद हमारे पास एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे मोमेंटम, डिनोटेड बाय P। तो मोमेंटम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या हुआ, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट होता है। नाउ जब हम सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे तो मोमेंटम का एक बड़ा हाथ होने वाला है। तो दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विल बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब हम लोग रेट बोलेंगे दैट मीन्स वो टाइम के द्वारा हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज वी आर मेजरिंग समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम अदर थिंग, मतलब होता है अगर वो चीज इंक्रीज होगा हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होने वाला है, वो चीज कम होगा हमारा मोमेंटम भी कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग पकड़ के चलते हैं F, कैपिटल F, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम लेट्स से वी आर टेकिंग एज m इंटू यू। आप लोग मोशन चैप्टर में u के बारे में पढ़े हो, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम हम लोग पकड़ के चलते हैं v। v इज द फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम हम लोग देते हैं m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम हम देते हैं m इंटू v। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो mv माइनस mu, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। नाउ m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मोशन चैप्टर में आप लोगों ने एक पार्टिकुलर रिलेशन आप लोगों ने देखा था जहां पे दिया था एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a लिख सकते हैं, दैट इज a फॉर एक्सीलरेशन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग ए कांस्टेंट वैल्यू। तो f इक्वल टू हम लोग पकड़ के चलते हैं k इंटू m इंटू a। ये जो k है इसको बोला जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ दिस पार्टिकुलर फोर्स इक्वल टू k इंटू m इंटू a। m होता है मास, a एक्सेलरेशन, f फोर्स एंड k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मान लो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट का मास लिया 1 किलो या 1 kg, और यहां पे एक्सेलरेशन होता है, मान लो कुछ समय के लिए दिस पार्टिकुलर के हमने यहां से हटा दिया। नाउ 1 kg और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने यूनिट क्या देखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग 1 kg का ऑब्जेक्ट लेके उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तब जो फोर्स होगा विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। आइजैक न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने न्यूटन का जो यूनिट है वो फोर्स में डाला है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोल सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब जाके हमारा फोर्स होगा इक्वल टू 1 न्यूटन। तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हाउ कैन राइट, 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन an acceleration is produced at 1 meter per second square and the mass of the object is equal to 1 kg.
अगर आप पकड़ लो कि वहां पे यहाँ पे हम लोग 1 kg ले लिया, हमने एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, तो फोर्स हो जा रहा है 1 न्यूटन, देन k का जो वैल्यू आएगा k विल बी इक्वल टू 1. सो दिस पार्टिकुलर थिंग starting from the definition of force, balanced unbalanced force, first law of motion, second law of motion, फिर उसके बाद आता है फोर्स का, ये जो पार्टिकुलर है फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिराइवेशन, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. दिस constitutes the first part of the video under the chapter force and laws of motion. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन्स है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपना कंफ्यूजन डाल सकते हो. आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कम इन द सेकंड सेशन, दैट इज विच कंस्टिट्यूट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास, इनर्शिया. वी विल ऑल एक्सप्लेन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. आप लोग का कंफ्यूजन्स यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू यू ऑल. थैंक यू. डू सब्सक्राइब एंड like the videos. Thank you.